हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ वेरोरिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर्स इन द रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Today we are going to understand the regulation of cardiac output. So first of all, we should know what is cardiac output, right? So cardiac output क्या है? Amount of blood ejected by each ventricle per minute. राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में से एक मिनट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट होता है, दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इज नोन एज कार्डियक आउटपुट. सो कार्डियक आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. So stroke volume is amount of blood ejected by each ventricle in one cardiac cycle or in one beat. That is your stroke volume. So amount of blood ejected by each ventricle in one cardiac cycle or during one beat is stroke volume. And if we multiply the stroke volume into heart rate, we get cardiac output. Right? Now regulation of cardiac output. कार्डियक आउटपुट अब हमें पता लग गया, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम पे और हार्ट रेट पे. अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी चेंज होगा. सेम वे हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो again cardiac output will be affected. So the factors which are affecting these two parameters, stroke volume and heart rate, they are regulating the cardiac output. So this regulation can be divided into two categories, extrinsic regulation and intrinsic regulation. Now extrinsic regulation is one that is outside the heart. Heart के बाहर जो regulation चल रही है. So this extrinsic regulation is controlling the heart rate. जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि cardiac vagal center and vasomotor center, they are controlling the और regulating the cardiovascular system. तो ultimately क्या हो रहा था, या तो sympathetic activity increase हो रही थी या vagal activity increase हो रही थी, and they were affecting your heart rate. So that was your extrinsic regulation. Same mechanism है जो यहाँ पे apply हो रहा है. तो extrinsic मतलब हार्ट के बाहर रेगुलेशन चल रही है. So these medullary centers, medulla में ये रेगुलेशन चल रही है, they are controlling the heart rate. So this is extrinsic regulation. Next is intrinsic regulation, which is controlling your stroke volume. तो ये जो रेगुलेशन चल रही है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम को कंट्रोल कर रही है, हार्ट के अंदर ही चल रही है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक रेगुलेशन बोला गया है. सो दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन एंड दी होमोमेट्रिक रेगुलेशन. तो नाम से ही पता लग रहा है हेट्रोमेट्रिक मतलब देयर इज चेंज इन दी लेंथ. यहाँ पे जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कार्डियक मसल फाइबर्स की लेंथ में चेंज की बात कर रहे हैं. सो देयर इज चेंज इन दी लेंथ ऑफ दी कार्डियक मसल फाइबर. होमोमेट्रिक रेगुलेशन मींस होमो है, सेम है, हेयर length remains same. So here length of the cardiac muscle fibers remains same. ठीक है? So there are two types of regulation, extrinsic and intrinsic. Extrinsic is controlling your heart rate, which is located in the medulla, CVC, and your vasomotor center. Intrinsic regulation is controlling your stroke volume, two types, homometric and the heterometric regulation. Now let's study what is heterometric regulation. तो हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन हमने क्या डिस्कस किया, जहां पे चेंज इन द लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स हो रहा है. सो चेंज इन द लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स. सो हियर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स लाइक दैट ऑफ स्केलेटल मसल डिपेंड अपॉन इट्स प्री लोड. ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं स्केलेटल मसल में, प्री लोड आफ्टर लोड वाले. तो हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन में क्या हो रहा है, कार्डियक मसल फाइबर का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है स्केलेटल मसल की तरह, वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है प्री लोड. Here preload is determining the length of the muscle fiber. So this regulation is based on this Frank-Starling law. So Frank-Starling law pe you can get a small question. So what does this law state? Within physiological limits, force of contraction of cardiac muscle is proportionate to initial length of the muscle fiber. ठीक है, तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर. So this is your Frank-Starling law, force of contraction proportional to initial length of the muscle fiber. अगर हमारा प्रीलोड बढ़ेगा मतलब हमारी इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर बढ़ेगी, इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर बढ़ेगी तो हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो हमारा
कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से हमारे पास क्या चीज निकल के आ रही है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर initial length of the muscle fiber. So this initial length is dependent on your preload. ठीक है, तो अगर हमारा प्रीलोड इंक्रीज होगा तो हमारी इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अगर हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज योर हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन। अब ये जो हमारा प्रीलोड है वो कैसे बन रहा है, व्हाट इज प्रीलोड? प्रीलोड क्या चीज बना रही है? सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फॉर्म्स द प्रीलोड हियर। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आई होप यू अंडरस्टैंड, द अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच इज present in the ventricles at the end of the diastole. So that is your end diastolic volume. तो end diastolic volume हमारा preload बना रहा है। So this end diastolic volume is further depending on your venous rhythm. तो वेनस रिटर्न क्या है, पूरी बॉडी से जो ब्लड इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके हमारे राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। सो दैट अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज रिटर्निंग टू द हार्ट, दैट इज नोन एज वेनस रिटर्न। तो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे वेनस रिटर्न पे डिपेंड करेगा कि जितना हमारे पास बॉडी में से इकट्ठा होके वापस आ रहा है ब्लड, उतना ही तो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होगा, which is acting as preload. So this end diastolic volume will depend on the venous return. तो आगे हम पढ़ेंगे जो जो factors इस venous return को affect कर रहे हैं, they are helping in the regulation of your cardiac output. ठीक है, so there is a graph which is known as Frank-Starling curve और Frank-Starling graph. तो ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए एग्जाम में, ये बनाने को अलग से भी आ जाता है। एंड इफ यू गेट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, यू मस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पे वही हम दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ द मायोकार्डियल फाइबर्स, एंड वाई एक्सिस पे है हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मायोकार्डियम। सो दीज आर अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज obtained. Now this initial length of the myocardium or the myocardial fiber is affected by this extent of preload. जो हमारे पास preload है, मतलब जो हमारा end diastolic volume है, ये initial length उससे determine होगी. So what are the factors which are increasing or decreasing this end diastolic volume? So let's see them one by one. So this stretching of myocardium or the extent of preload is increased by increase in the total blood volume. ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारा वेनस रिटर्न ज्यादा होगा, वेनस रिटर्न ज्यादा होगा तो हमारा प्रीलोड ज्यादा होगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जितना स्ट्रांगली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर इजेक्ट हो पाएगा। इंक्रीज पंपिंग एक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, तो अगर हमारे लोअर लिम्स के स्केलेटल मसल्स अच्छे से काम कर रहे हैं तभी जो है वो वेनस रिटर्न वापस हार्ट तक जा पा रहा है। इंक्रीज वेनस टोन, अगर हमारी जो वेन्स हैं, वेनस रिटर्न कहाँ से जा रहा है, वेन्स में से जा रहा है। इफ टोन ऑफ दीज वेनस वेन्स और दी वॉल्स ऑफ दीज वेन्स इज डिक्रीज, तो हमारा वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट और टू इंक्रीज द वेनस रिटर्न। अगर हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें डिक्रीज किससे हो रही है, बाय डिक्रीज इन दी टोटल ब्लड वॉल्यूम, ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन दी इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, डिक्रीज इन दी वेंट्रिकुलर कंप्लायंस। अगर हमारे वेंट्रिकल के जो मायोकार्डियल फाइबर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो हेल्दी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मायोकार्डियल इंफाक्शन वो फाइबर्स इश्केमिक हो जाते हैं, नेक्रोज हो जाते हैं, तो वेंट्रिकुलर कंप्लायंस अच्छी नहीं है, वो रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। बॉडी पोजीशन का भी इफेक्ट आता है ऑन दी वेनस रिटर्न, तो स्टैंडिंग में जो है हमारा वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन, then increase in the intrathoracic pressure. So these are the factors which are affecting your preload or the venous return, which is directly affecting your initial length of the muscle fiber and affects your force of contraction, then regulates your cardiac output. तो बहुत सारा कुछ है यहाँ पे लिंक करने के लिए।
तो अभी के लिए इतना हम समराइज करते हैं कि हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन में हमारे पास क्या है, एक तो चेंज इन दी लेंथ ऑफ द मसल, इतना हमें समझ आया कि फाइबर की जो मसल फाइबर की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। और ये जो इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ऑन द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। दिस इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर इज डिटरमाइंड बाय द प्रीलोड, और प्रीलोड यहाँ पे क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज एक्टिंग एज द प्रीलोड, and this end diastolic volume further depends on the venous return. So factors which affects your venous return affects your end diastolic volume and affects your cardiac output finally. तो ये हमारा हमने पढ़ा था, जो अभी फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व पढ़ा था, ये पूरी जो रेगुलेशन है ये डिपेंड कर रही है हमारे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ पे। तो ये आपको आना चाहिए, इसका ग्राफ भी आना चाहिए। और ये वाले फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं वेनस रिटर्न को, जिससे अल्टीमेटली हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो अफेक्ट हो। आगे चलते हैं, अब हम एक एक फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो दीज आर योर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेनस रिटर्न। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेस्पिरेटरी पंप, जो हमने बात की थी, इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, सो इट इज डन बाय योर रेस्पिरेटरी पंप। कार्डियक पंप, हार्ट खुद एक रोल प्ले कर रहा है इन द रेगुलेशन ऑफ दिस वेनस रिटर्न। मसल पंप, ये भी हमने डिस्कस किया था कि स्केलेटल मसल में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, टोन अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज होगा। टोटल ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा। कैपेसिटी ऑफ वेनस रिटर्न, ये यहाँ पे हमारे जो वेन्स हैं वो अच्छे से काम करनी चाहिए। बॉडी पोजीशन, ये भी हमने डिस्कस किया कि स्टैंडिंग में जो है हमारा वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। And ventricular compliance. So these are the factors affecting your venous return. You can draw this diagram, draw this flow chart to explain it in a better way. यही सारे factors हमें यहाँ पे दिखाए हुए हैं इस diagram। आगे चलते हैं। So what is the role of respiratory pump? तो रेस्पिरेटरी पंप क्या कर रहा है, नॉर्मली जो हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जो हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है बाय -5 mm Hg। 5 mm Hg तक जो हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये हमें पता है, वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा तभी हम ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं, ठीक है। तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज लेस प्रेशर ओवर लार्जर वेन्स एंड द आर्टरीज। एक तो ये चीज हो गई, दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। पहली चीज हो रही है, हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से लेस प्रेशर इज प्रेजेंट ओवर लार्जर वेन्स एंड आर्टरीज। दूसरी चीज क्या हो रही है, हमारा जो डायफ्राम है वो डिसेंड कर जा रहा है। डायफ्राम डिसेंड करने की वजह से क्या हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, विच इज स्क्वीजिंग आउट द ब्लड फ्रॉम द एब्डोमेन। मिजेंट्री में एब्डोमेन में जितना ब्लड है वो स्क्वीज होके हमारा वेनस रिटर्न फॉर्म कर रहा है। So these two factor increases the venous return during inspiration. So this is the role of respiratory pump. तो इसको समराइज करें तो रेस्पिरेटरी पंप के जो दो रोल्स हमने पढ़े, एक तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर जिसकी वजह से हमारा जो वेनस रिटर्न बढ़ रहा है। दूसरी चीज हो रही है डिसेंट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के डिसेंट से क्या हो रहा है, हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है और एब्डोमेन में मिजेंट्री में जितना भी ब्लड है वो हमारा बाहर आ रहा है फॉर द वेनस रिटर्न। तो अल्टीमेटली दिस इज अफेक्टिंग योर कार्डियक आउट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम। सो दिस वाज योर फर्स्ट फैक्टर, रेस्पिरेटरी पंप। नेक्स्ट वी विल मूव टू द कार्डियक पंप। तो हमने डिस्कस किया था कि कार्डियक पंप का हार्ट भी रोल प्ले कर रहा है इन द रेगुलेशन ऑफ योर कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट का क्या रोल है यहाँ पे, हार्ट भी एक पंप की तरह काम कर रहा है। नाउ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द हार्ट। These two forces are defined as visa turbo and visa fronte. Visa turbo and visa fronte. तो visa turbo क्या है, फॉरवर्ड फोर्स है, सॉरी फॉरवर्ड पुश है जो पीछे से धक्का लगा रहा है ब्लड, ठीक है। विसा टर्गो क्या है, पीछे से धक्का लग रहा है ब्लड को कि ब्लड आगे जाए वेंट्रिकल्स के। विसा फ्रंटे क्या है, सक्शनिंग फोर्स है जो खींच रहा है ब्लड को अपने अंदर, ठीक है। तो विसा टर्गो क्या है, रेफर्स टू द फॉरवर्ड पुश फ्रॉम बिहाइंड दैट इज प्रोपेलिंग द फोर्स which pushes the blood from veins into the right atrium. अब क्या हो रहा है, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा ये ब्लड लेके आ रही है,
राइट, ये ब्लड लेके आ रही है, तो पीछे से कुछ धक्का लग रहा है इस सुपीरियर और वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में, जितना भी ब्लड उनके अंदर है वो वापस सारा हमारा राइट एट्रियम में आ जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में ब्लड है, इनके ऊपर पीछे से किसी ने धक्का लगा दिया, दैट फोर्स इज नोन एज विसा टर्बो। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो हम बात कर रहे थे विसा टर्बो और विसा फ्रंटे की। सो विसा टर्बो क्या है, फॉरवर्ड पुश है जो पीछे से ब्लड को धक्का लगा रहा है कि आगे जाए। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में पीछे से एक पुश आ रहा है, सो दैट ऑल द ब्लड इज प्रोपेल्ड और फिल्ड इनटू द राइट एट्रियम। तभी आगे काम बढ़ेगा, तभी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अगर राइट एट्रियम में ही वेनस रिटर्न नहीं आएगा तो कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा। सो दिस फोर्स जो राइट एट्रियम में ब्लड को भेज रहा है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा को धक्का लगा के, दैट फोर्स इज नोन एज विसा टर्बो। अब ये फोर्स कहाँ से डेवलप हो रहा है, हवा में तो नहीं आ रहा ना कोई भी फोर्स, कोई चीज तो डेवलप कर रही है ये फोर्स। सो दिस फोर्स इज डेवलप्ड बाय योर contraction of the myocardium as well as the elastic recoil of the arterial wall। ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द आर्टीरियल वॉल से ये विसा टर्बो जनरेट हो रहा है, विच इज इंक्रीजिंग योर वेनस रिटर्न एंड योर कार्डियो। विसा फ्रंटे क्या है, रेफर्स टू द सक्शन फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द फ्रंट विच पुल्स द ब्लड फ्रॉम ग्रेट वेन्स इनटू राइट एट्रियम। अब ये विसा फ्रंटे कहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, और ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है यहाँ से फोर्स लग रहा है, फ्रंट से फोर्स लग रहा है कि जितना ब्लड है वो खींच ले अपने अंदर, पुल कर ले, खींच ले। दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस फोर्स इज योर विसा फ्रंट। डायग्राम से समझते हैं, ये हमारी सुपीरियर वेना केवा है, दिस इज योर इंफीरियर वेना केवा। सॉरी फॉर दिस डायग्राम बट लेट अस अंडरस्टैंड। और ये हमारा राइट एट्रियम। अब पीछे से एक फोर्स लग रहा है सुपीरियर वेना केवा पे और इंफीरियर वेना केवा पे, जो पुशिंग फोर्स है, विच इज पुशिंग द कंटेंट, पुशिंग द ब्लड हेयर एंड ब्लड इज कमिंग टू द राइट एट्रियम। धक्का लग के ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम में, तो ये हमारा फोर्स हो गया, दिस इज योर विसा टर्बो। अब सेकंड है विसा फ्रंटे, राइट एट्रियम में फोर्स है प्रेजेंट है, वो फ्रंट से फोर्स लगा रहा है और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो ब्लड है उसको अपने अंदर खींच रहा है। दिस पुलिंग फोर्स इज योर विसा फ्रंटे। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द आर्टीरियल वॉल से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रोल ऑफ हार्ट और कार्डियक पंप in the regulation of cardiac output. Now let us see the muscle pump. अब मसल भी एक पंप की तरह काम कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स। तो मसल पंप में क्या हो रहा है हमारे पास, these are responsible for the flow of blood from the veins of the limbs to heart। लिम्स में, मेनली लोअर लिम्स में जो हमारी वेन्स है उनके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वापस हार्ट में भेजने के लिए मसल पंप बहुत रिस्पॉन्सिबल है। So decrease pumping action of the skeletal muscle will decrease your venous return and vice versa। अगर skeletal muscle का pumping action increase हो रहा है तो venous return बढ़ जाएगा, pumping action decrease हो रहा है तो decrease हो जाएगा। अब हो क्या रहा है muscle contraction में, during the phase of muscle contraction the deep veins are compressed। muscle contract हो रहा है, ये हमारा अगर muscle है, so let us see this is your muscle और यहाँ पे हमारी वेन्स प्रेजेंट है, वेन्स के अंदर हमारे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। तो अब क्या होगा, ब्लड हमारा यहाँ से वापस आ रहा है, वापस आना चाहिए। ठीक है, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये जो वेन्स है इनके ऊपर कंप्रेशन बन गए, दबाव पड़ गया, बीच में प्रेशराइज हो गई है, तो देयर इज इंक्रीज प्रेशर इनसाइड दी। सो इंक्रीज प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो प्रॉक्सिमल वेल्व है, ये वाला जो प्रॉक्सिमल वेल्व है, इट इज ओपन एंड डिस्टल वेल्व इज क्लोज। ठीक है, ये वाला वेल्व हमारा बंद हो गया, ये वाला वेल्व ओपन हो गया। अब जो ब्लड है वो वापस नीचे नहीं जा पाएगा, सो दिस ब्लड विल
move to the heart, increasing your venous return. So this blood is propelled towards the heart. So this is happening in the contraction of the muscles. ठीक है. Next we come to रिलैक्सेशन के वक्त क्या, रिलैक्सेशन के वक्त क्या हो रहा है हमारे पास. सो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल opposite action will take place. Negative pressure is created in the segment of the veins. Proximal, अब यहाँ पे proximal valve बंद हो जाएगा, distal valve open हो जाएगा और blood वापस से veins में रह जाएगा, blood veins के अंदर sucked up हो जाएगा and it will decrease your venous return. So as we can see in this diagram also, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है. कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आप देखो जो प्रेशर इंक्रीज होगा हमारा इधर वेन्स के ऊपर, प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिस्टल वेल्व बंद हो गया, डिस्टल वेल्व बंद हो गया, प्रॉक्सिमल वेल्व खुल गया, ये प्रॉक्सिमल वेल्व ओपन होगा. सो इट इज इंक्रीजिंग योर वेनस रिटर्न. अब ये ब्लड हार्ट के पास जा रहा है. और रिलैक्सेशन स्टेट में ऑपोजिट हो रहा है. मसल्स आर रिलैक्स, वेन्स के ऊपर से प्रेशर कम हो गया, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ये प्रॉक्सिमल वेल्व बंद हो गए, distal valve open हो गए and decreasing your venous return. So this was the role of skeletal muscles in regulation of cardiac output. ठीक है, जब हम ये नहीं पढ़ते हम सोच भी नहीं सकते कि skeletal muscle भी हार्ट की रेगुलेशन में कुछ रोल प्ले करें, राइट. So all the parts of your body are interlinked. सारी फिजियोलॉजी आपस में जुड़ी हुई है, इंटरलिंक. नेक्स्ट इज टोटल ब्लड वॉल्यूम. बहुत सिंपल है, अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारा वेनस रिटर्न ज्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो वेनस रिटर्न कम होगा. ब्लड ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है तो वेनस रिटर्न हम कहाँ से बढ़ाएंगे, तो ना ही कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ वेनस रिटर्न. सो दिस कैपेसिटी ऑफ वेनस रिटर्न इज डिपेंडिंग ऑन योर vessels, veins are your capacitance vessels. So increase in the sympathetic activity will increase the venous tone and will increase your venous return and increase your cardiac output. So this was the next factor. Next we move to body position. तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया. बॉडी पोजीशन क्या है, ड्यूरिंग स्टैंडिंग जो है हमारा venous return decrease हो जाता है because during standing there is peripheral cooling of the blood vessels, decreasing your venous return. Next is ventricular compliance. So ये भी हमने डिस्कस किया था कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद जिस एरिया में इश्कीमिया होता है वो एरिया, वहां के जो मायोकार्डियल फाइबर्स हैं वो फाइब्रोटिक हो जाते हैं, नॉन फंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है एंड योर वेनस रिटर्न विल decrease. So all we did was your heterometric regulation, जहाँ पे initial length of the muscle fiber change हो रही थी. So there were certain factors. सबसे पहले हमें इसमें याद रखना है, एक तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ याद रखना है हेटेरोमेट्रिक रेगुलेशन में, ये मैं आपको समराइज कर रही हूँ. फिर उसका कर्व याद रखना है, फिर डिफरेंट फैक्टर्स, रेस्पिरेटरी पंप हो गया, आपका कार्डियक पंप हो गया, देन स्केलेटल मसल पंप. ठीक है, ये मेन तीन चीजें, ये तीन पंप हो गए. उसके बाद हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम आ गया, राइट. टोटल ब्लड वॉल्यूम, वेन्स की कंडीशन सही होनी चाहिए, देन दिस पोस्चर आ गया हमारा एंड ventricular compliance. So these factors are regulating your venous return and ultimately regulating your cardiac output. Now let's move to homometric regulation, जहाँ पे लेंथ ऑफ द मसल फाइबर चेंज नहीं हुई. ठीक है, सो ये हम सारी बात किसकी कर रहे थे, पीछे जाओ थोड़ा सा, तो इंट्रिंसिक रेगुलेशन की, जो कि हार्ट के अंदर हमें चीजों को रेगुलेट करके दे रही है. और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन की भूले तो नहीं है, इसलिए मैं रिमाइंड कर रही हूँ. एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन की जो मेडुला में चल रही है, which is controlling your heart rate, that is your cardiac vagal center and your vasomotor. अब होमोमेट्रिक रेगुलेशन में क्या हो रहा है, लेंथ रिमेन्स सेम. यहाँ पे जो इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर है दैट इज सेम. ठीक है, नेक्स्ट हियर वी हैव दैट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी हियर increases without any change in the initial length of the muscle fiber. तो यहाँ पे होमोमेट्रिक रेगुलेशन क्या कह रही है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मायोकार्डियल का वो यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर. अब लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है,
कुछ तो फैक्टर्स होंगे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए. So we have certain factors. This myocardial contractility is increased by circulating catecholamines, जिसमें आ जाते हैं आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. देन स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व टू दी हार्ट. ठीक है, तो ये हमने जब मेडुलरी सेंटर्स पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि सिंपैथेटिक अगर स्टिमुलेशन होगी तो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी. आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, बेथमोट्रोपिक, ब्रोमोट्रोपिक सारे इफेक्ट आएंगे. So stimulation of the sympathetic nerve to the heart, forced frequency relation, then drugs, certain drugs like digitalis, glucagon and caffeine. So all these are increasing your myocardial contractility and further increasing your cardio. Then what are the factors which are decreasing the myocardial contractility? That is loss of myocardium of due to myocardial infarction. तो myocardial infarction में वही कि कोई इश्केमिक जो फाइबर है मायोकार्डियम है वो लॉस हो जाएगी जिसकी वजह से वो काम नहीं करेगी, तो इट विल डिक्रीज योर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. अगेन देन इसके ऑपोजिट सिंपैथेटिक की जगह अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए. इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डिप्रेशन है, हार्ट फेलियर हो रहा है, ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट, क्विनिडीन, और देयर इज हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया एंड एसिडोसिस. So here if we draw the diagram, so here initial length of the myocardial fiber is not directly related to your force of contraction of the myocardium. So this was your normal curve, Frank Starling curve था. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे other factors हैं which are affecting this curve. These जो फैक्टर्स यहाँ पे हमें इंक्रीज कर रहे हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, वो इस कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जो फैक्टर्स डिक्रीज कर रहे हैं वो इस कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे. सो दिस वाज योर होमोमेट्रिक रेगुलेशन. होमोमेट्रिक रेगुलेशन में आपने बस इतना ही एक्सप्लेन करना है इफ यू गेट इन क्वेश्चन कि यहाँ पे एक तो लेंथ सेम रहेगी, यहाँ पे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर पर डिपेंड नहीं कर रही, and you have to name these certain factors which are affecting your myocardial contractility. So this was your homometric regulation. So here we complete the regulation of cardiac output. बहुत ही simple था. Extrinsic regulation को यहाँ पे हम नहीं explain कर रहे, आपको भी इतनी जरूरत नहीं है डिटेल में explain करने की. You only have to write कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट रेट रेगुलेट हो रही है, कैसे हो रही है, मेडुलरी सेंटर से हो रही है, इतना explain कर दो. उसके बाद you will explain this homometric and the heterometric regulation. So sometimes you also get difference between homometric and heterometric regulation. बहुत ही simple से major differences हैं कि heterometric में ventricle contraction जो है directly proportional to the initial length of muscle fiber. यहाँ पे क्या हो रहा है, change in myocardial contractility is independent of the resting length of the muscle. This is independent of cardiac innervation. ठीक है, यहाँ पे heterometric में कोई sympathetic parasympathetic activity का role नहीं दिख रहा, but this depends on the cardiac innervation. So here we complete the regulation of cardiac output. I hope it is clear to all. So if you have any doubt, you can comment me in the comment section. Till then, please like, share and subscribe my channel and stay hydrated. Thank you so much. Bye bye.